Hello students and welcome to the Bioinformatics Entities 1. The scope and objective of today's practical will include the identification of differentially expressed genes and their related pathways. Also, this practical will play a crucial role in biomarker discovery and that how these genes act or express in a diseased and a drug-treated samples. Lastly, the data mining and integration, we'll see how different databases navigate to the other databases or browsers for further analysis of these samples. For this purpose, we will use ArrayExpress, which contains the high throughput experimental microarray data, which primarily focuses on gene expression data. The key features of ArrayExpress includes the data retrieval. We will learn that how we can actually retrieve and download and save the data in our local directory. Then the array express contains the data which is experimentally annotated, since the array express contains the microarray data which are experimentally produced. Therefore, it will be experimentally annotated as well. Then the data analysis, array express allows us to analyze the different kinds of sample data. And lastly, the interoperability of array express. Interoperability means that how array express enables us to use the other platforms or the other databases as well. Let's talk about the objectives of this practical one by one. So the identification, we will be able to identify the genes which are differentially expressed. By differentially expressed, it means that how different samples in a diseased and the normal condition, how genes are expressed in different samples. In our analysis, we will take different samples. Let's say if we want to take, if we want to take cancer samples, we will be given a sample of cancer patients and another sample of healthy patients, and we will check the differential expression between the samples. And also, when we will be able to identify the genes which are differentially expressed, we can see or we can check the interaction between those genes, between those group of genes, and then we can process it further for the pathway analysis by using different other online or web tools like the String, Reactome, or KEGG. Our practical will also play an important role in identification of potential biomarkers. For this purpose, we will be comparing those expression profiles. Let's say we will be comparing the cancer profiles of healthy patients and the cancerous patient, and then we will analyze the drug response. For this purpose, we will set another analysis where we will take cancer patient sample and another sample which will contain the healthy patients, but those patients which are treated with some kind of drug. So we will also see the expression, the differential expression that causes. Let's say. Let's say we have the two samples. One is cancerous sample, and the other sample will contain the patients which have been treated with some kind of drugs. And lastly, the visualization of those expression profiles. For this purpose, the Array Express provides us with different kinds of plots and graphs the for the expression for the gene expression. So let's move towards the browser. Simply navigate to any web browser and type Array Express. It's taking some time.
सो दिस इज़ द होम पेज। सिंपली हम कोई भी अपनी स्टडी जो है या कोई भी सेल लाइंस जो है वो सिंपली सर्च बार में सर्च कर सकते हैं। जैसे लेट्स से हम कैंसर सैंपल्स को स्टडी करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली अगर हम ब्रेस्ट कैंसर ले लें तो सिंपली ब्रेस्ट कैंसर सर्च करें और आपके पास जो है वो लिस्ट आ जाएगी। अब डिपेंड करता है आपके सुपरवाइज़र पे या आपकी रिसर्च पे कि आप किस तरह का जो है सैम्पल डाटा या एक्सप्रेशन प्रोफाइल्स जो हैं वो स्टडी करना चाहते हैं। सो हम इसमें जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ले लेते हैं। इसमें हमारे पास हेल्दी टिश्यूज़ होंगे और कैंसरस टिश्यूज़ होंगे। सो नेक्स्ट पेज पे आपको जो है वो ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ऑर्गेनिज्म मिल जाएगा कि किस ऑर्गेनिज्म का ये डेटा है, ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल डेटा। राइट साइड पे बार है, एक पैनल है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो आईडीज़ आ जाती है। अब ये ईच आईडी जो है वो ईच सैंपल को शो करती है। अगर इस ईच सैंपल को हम ले तो इस सैंपल के अंदर डिफरेंट जीन्स हमारे पास आ जाएंगी जो कि नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा कि बेसिकली इन सैंपल्स के अंदर है क्या। सो अगर इसी पैनल के नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक लिंक मिलेगा जियो का। बेसिकली जियो एक और डेटाबेस है जो कि एरे एक्सप्रेस जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस के लिए। तो आप सिंपली इस आईडी को क्लिक करें तो आपके पास आ जाएगा जियो 2R का जो है होम पेज ओपन हो जाएगा। सो बेसिकली इसके ऊपर भी जो इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, इन सैम्पल से रिलेटेड इनिशियल सारी डिटेल्स मौजूद हैं। जैसे समरी है और एक्सपेरिमेंट टाइप है कि किस तरह का जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया है इन सैम्पल्स पे। सो इस केस में एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बाय एरे, वही माइक्रो एरे टेक्निक यूज़ की गई है। इसके अलावा सबमिशन डेट एंड एवरीथिंग एल्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एनालाइज विद जियो 2R। एनालाइज विद जियो 2R पे जाएंगे तो हमारे पास बेसिकली एनालिसिस पेज खुल जाएगा। अब इस एनालिसिस पेज में एज यू कैन सी हमारे पास एक सेशन नंबर है और फिर हमारे पास सोर्स नेम है कि हमारे पास टिश्यूज़ कौन से हैं। हमारे पास इधर ब्रेस्ट कैंसर टिश्यूज़ हैं या हमारे पास नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यूज़ हैं। तो इन दोनों के एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स यानी हम अपनी स्टडी को इनपुट देंगे। तो इनपुट के लिए सबसे पहले ग्रुप्स डिफाइन करें। एक बना ले कैंसर सेल, एंटर कर दें और दूसरा बना दें कंट्रोल। कंट्रोल बेसिकली हेल्दी सेल्स को जो है वो शो करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि हमने जितने भी ब्रेस्ट कैंसर वाले सैंपल्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर टिश्यूज़ हैं, उन सब को जो है इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देना है। तो सिंपली क्लिक करें, कंट्रोल प्रेस करें और जितने ब्रेस्ट कैंसर वाले इसके अंदर टिश्यूज़ हैं वो सारे सिलेक्ट कर लें। सब सिलेक्ट हो गए, सिंपली कैंसर सेल के ऊपर क्लिक कर दें। अब देखिए 8 सैंपल्स हमारे ऐड हो गए इस ग्रुप के अंदर। सेम प्रोसीजर जो है वो हमने नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स के साथ करना है और क्लिक करना है कंट्रोल के ऊपर। सो 8 सैंपल्स हमारे इस ग्रुप में भी ऐड हो गए। फिर सिंपली ऑप्शंस के ऊपर जाना है। अब ये बैक एंड पे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हमने वैल्यूज़ देनी होती है कि हमारी एनालिसिस किस तरह की वैल्यूज़ पर रन करेगी। सो ये कुछ एडजस्टमेंट्स है पी वैल्यूज़ की जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो ये वाला एल्गोरिदम ही रखेंगे। इसके अलावा जो है ये अगर आप देखें पी वैल्यूज़ 0.05, ये हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे जब हमारे पास आउटपुट आ जाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि आया जो पी वैल्यू की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो 0.05 ही क्यों रखी जाती है। सो बाकी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इनको बाय डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं। और लेकिन एक जो है ये चेक बॉक्स हम इसको क्लिक कर देंगे ताकि हमारे पास आउटपुट के अंदर डिफरेंट ग्राफ्स और प्लॉट्स जो है वो आ जाए। इसके बाद रीएनालाइज पे क्लिक कर देना है। रीएनालाइज के बाद जो है ये प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देगा, हमारी एनालिसिस रन हो जाएगी। इट कुड टेक लाइक अ मिनट और टू, जिसके बाद जो है हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, तो हमारे पास आउटपुट आ चुकी है। अब आउटपुट में आप देखें हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं टॉप पे, जिस पे हमारे पास वोल्केनो प्लॉट है, हमारे पास बार ग्राफ है, इसके बाद हमारे पास पाई चार्ट है। और जो फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आईडीज और एडजस्टेड पी वैल्यूज़ के साथ लिस्ट ऑफ जो है सैंपल्स आ जाएंगे।
इन इन इस हर सैंपल के अंदर जो है हमारे पास ग्रुप ऑफ जीन्स है जिनका जो है एक्सप्रेशन, जो कि ग्राफिकल एक्सप्रेशन वाइज जो है वो रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। अगर हम पहले ग्राफ्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आता है वोल्केनोग्राफ। वोल्केनोग्राफ बेसिकली जो है वो स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को शो करता है कि हमारे पास हमारे रिजल्ट्स के अंदर कौन सी जीन्स जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्कैटर प्लॉट भी कहते हैं कि जीन्स जो है वो अपना इंटरेक्शन या रिलेशन की वजह से किस तरह स्कैटर करती है किसी भी बोर्ड के ऊपर। तो इसमें जो ब्लू है वो डाउन रेगुलेट हुई है सारी जीन्स इस पूरी एनालिसिस के अंदर, इस कैंसर एनालिसिस के अंदर, और जो रेड है वो अप रेगुलेट हुई है। इसके अलावा जो ब्लैक में जीन्स है वो सारी, वो बेसिकली ब्लैक इसलिए हैं कि वो इतनी हमारी इस एनालिसिस के अंदर इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। सो सिर्फ जो सिग्निफिकेंट जीन्स है वो आइदर ब्लू या रेड में शो होती है जो कि अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट हुई है। अगर आप एक्सप्लोर एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपके पास आप ईच जो ये डॉट है, ईच जीन है, उसको आप जो है वो स्टडी कर सकते हैं। उसकी आपके पास आईडी भी आ जाएगी, और लॉग 2 और लॉग 10 वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। ये डायनामिक एक वेब पेज है जो ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ये सिंपली डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके पास जो है वो डाउनलोड भी हो जाएंगी जीन्स, ये सारी सिग्निफिकेंट। इसमें अप रेगुलेटेड जीन्स भी आती हैं और डाउन रेगुलेटेड जीन्स भी आती हैं जो कि फर्दर एनालिसिस के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेम जो है वो सेकंड मीन डिफरेंस प्लॉट है। मीन डिफरेंस प्लॉट में भी आपके पास जो डाउन रेगुलेटेड अप रेगुलेटेड जीन्स हैं वो स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में शो करती है, और जो अनसिग्निफिकेंट जीन्स है या नॉन सिग्निफिकेंट जीन्स है वो ब्लैक में आपको सेंटर में नज़र आएंगे। इसके अलावा डिफरेंट प्लॉट, ये सब प्लॉट जो है वो डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह डेटा जो है कैंसर और नॉन कैंसर सेल का जो डेटा जो है वो अक्रॉस द बोर्ड जो है वो स्कैटर होता है। इसके अलावा ये एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट बेसिकली ओवरलैप को शो करता है कि कैसे हमारा जो कैंसरस डेटा है, कितनी जीन्स जो है वो कैंसरस सैंपल की हैं और कितनी जीन्स जो है वो नॉन कैंसरस सैंपल की हैं। इसके अलावा अगर हम स्क्रॉल डाउन करें और हमारे पास जो है ये लिस्ट ऑफ सैंपल्स आ जाती है। अगर आप किसी एक सैंपल को क्लिक करें तो इस पे आपके पास आ जाएंगी। इस पे हमारे पास देखें जो ग्रुप्स हमने डिफाइन किए थे जिसमें कैंसर और कंट्रोल सेल्स थे, उनका एक्सप्रेशन दिखाया गया। यू विल नोटिस कि जो कैंसर सेल्स हैं उनमें जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा है, रेड, जो कि रेड, ये जो रेड पीक्स है ये एक्सप्रेशन को शो करती हैं, जबकि जो कंट्रोल सैंपल है उसमें ये जीन एक्सप्रेस नहीं होती। सो व्हाट वी कैन टेक आउट ऑफ द स्टडी दैट जो जो हेल्दी सेल्स हैं उनमें ये जीन्स एक्सप्रेस नहीं होती, उनमें ये जीन्स जो है वो फर्दर प्रोटीन्स नहीं बनाते, जबकि जो कैंसरस सेल हैं उनमें जो कैंसरस सेल डिवीजन हुई है वो उनमें एक्सेस ऑफ एक्सप्रेशन शो हुआ है जीन्स का, और फिर जो है वो ट्रंकेटेड या डीफॉर्म प्रोटीन्स जो है वो बनी है इस केस में, कैंसरस सेल के केस में। अब इस सारे एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो लॉग एफ सी और पी वैल्यूज़, एडजस्टेड पी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है। लॉग एफ सी की वैल्यूज़ इधर पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती हैं। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मींस कि हमारे जो कैंसरस सैंपल था, कैंसर सेल था, उसके अंदर एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो है वो जीन एक्सप्रेशन शो हुआ है। जबकि अगर इसकी वैल्यू हम नेगेटिव में देखें तो आप नेगेटिव का कोई बॉक्स ओपन कर लें तो इसमें हमें पता चलेगा कि जो कंट्रोल सैंपल्स थे उनके अंदर जो है वो जीन एक्सप्रेशन जो है वो शो हो रहा है। सो इट्स एन इजी वे कि हम जो है किस तरह ग्राफिकल फॉर्म में या विजुअलाइज कर पाएँ अपने सैंपल डेटा को। तो एरे एक्सप्रेस जो है वो इस तरह की एनालिसिस हमें परफॉर्म करने का ऑप्शन देता है। सो एडजस्टेड पी वैल्यू बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड पी वैल्यू जो है वो शो करती है ये जो लास्ट पेज के ऊपर हमने कंट्रोल जो ऑप्शंस थे उनमें देखा था कि हमने इसकी वैल्यू, थ्रेशोल्ड वैल्यू जो थी वो 0.05 सेट की थी। अब 0.05 वैल्यू बेसिकली वो सिग्निफिकेंस को शो करती है। अगर इससे इस वैल्यू से, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से एडजेसेंट पी वैल्यू जितनी कम होगी उतने हमारे रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट आएंगे, यानी ये नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देगा। नल हाइपोथेसिस बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में उस हाइपोथेसिस को कहते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है वो उसकी सिग्निफिकेंस ज़ीरो होगी। तो अगर एडजस्टेड पी वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड से जितनी कम होगी, जितनी 0.05 से कम होगी उतने हमारे रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट आएंगे। तो ये एक एनालिसिस थी जिसमें हमने
कैंसरस और नॉन कैंसरस ब्रेस्ट टिश्यूज़ के जो है वो डिफरेंशियल एक्सप्रेशन देखा है। अब हम अपनी सेकंड एनालिसिस की तरफ चलते हैं, जो कि थी सेकंड एनालिसिस बेसिकली हमने परफॉर्म करनी थी, जिसमें हमने ड्रग रिस्पांस देखना था कि लेट्स से हमारे पास एक कैंसरस सैंपल है और दूसरा सैंपल हमारे पास ऐसा है जो जिसके अंदर ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि डिफरेंट कैंसर ड्रग्स से ट्रीट किया गया उनको। तो सिंपली जो है हम इधर एक ऐसा एक्सप्रेशन डेटा सर्च करेंगे, ट्रीटेड। तो ये हमारे पास डेटा आ जाता है जो कि डिफरेंट ड्रग्स या डिफरेंट मेडिसिन से कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट किया गया है। तो सारा प्रोसीजर वैसे ही रिपीट होगा, जिसमें हमने जो है वो कोई एक स्टडी ले लेनी है। हमने डायरेक्ट जियो पे नेविगेट करना है और हमारे पास जियो 2R पे इसकी एनालिसिस ओपन करनी है। अब इसमें हमारे पास जो आप नोटिस करेंगे कि कुछ अनट्रीटेड सैंपल्स हैं और कुछ जो है वो ट्रीटेड किए गए हैं डिफरेंट मेडिसिन के साथ, डिफरेंट ड्रग्स के साथ। इसमें आप जो है वो ग्रुप डिफाइन कर लें। इसमें हम एक ग्रुप बना लेते हैं ट्रीटेड और एक अनट्रीटेड। बिल्कुल सेम उसी वे में हमने जो है अनट्रीटेड सैंपल्स को अनट्रीटेड ग्रुप में शिफ्ट कर देना है और जो ट्रीटेड हैं उनको ट्रीटेड में शिफ्ट कर देना है और सिंपली ऑप्शंस पे जाके चेक मार्क करना है और री एनालाइज पे क्लिक कर देना है। सो ओके, इन द सेम वे दूसरी एनालिसिस की तरह इसमें भी हमारे पास कुछ प्लॉट्स आ गए। अगर हम स्कैटर प्लॉट देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, वो जो इनसिग्निफिकेंट जीन्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जो ब्लैक में है, जबकि जो सिग्निफिकेंट है वो काफ़ी कम है। जैसे रेड डॉट्स हमें सिर्फ एक या दो रेड डॉट्स हैं। सो ग्राफ्स आर बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हमारा जो ओवरऑल डाटा है वो किस तरह स्कैटर है ओवर ओवर द प्लेन। तो जो सिग्निफिकेंट जीन्स हैं वो एक्सप्लोर एंड डाउनलोड में जाके हम सिंपली डाउनलोड कर लेंगे और हमारे पास जो है वो सारी जीन्स आ जाएंगी जो कि सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं इस सारी स्टडी में। इसके अलावा एक और मैप है यू मैप। ये बेसिकली डायमेंशनैलिटी रिडक्शन प्लॉट होता है। इसमें हमारा जो जितना भी सैंपल डाटा है उसके फीचर्स, फ़र्ज़ करें एक कैंसर डाटा हमारे पास है तो हमने उनको डिफरेंट फीचर्स से कैटेगराइज किया होता है। तो जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है या एल्गोरिदम होता है, ये बेसिकली हमारे उस डाटा के फीचर्स को रिड्यूस कर देता है, उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस कर देता है और ओवरऑल जो है वो क्लस्टर की फॉर्म में हमें जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में हमें डाटा को शो कर देता है। जैसे ओवरऑल अगर हम देखें ग्रीन और हमारे पास ब्लू डॉट्स आ रहे हैं, सो ये ओवर द प्लेन स्पेस के अंदर हमारे पास जो ट्रीटेड और अनट्रीटेड सैंपल डेटा सैंपल्स हैं उसको बेसिकली शो करता है कि वो जीन्स जो है, नंबर ऑफ जीन्स किस तरह कौन कौन सी जो जीन्स है वो क्लस्टरिंग बना रही हैं और एक साथ जो है वो कम्युनिकेट करके या इंटरेक्ट करके हमें रिजल्ट्स दे रही हैं, अपना एक्सप्रेशन शो कर रही हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नोट करनी है हमने कि जैसे log FC की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रीटेड सैंपल में इसका एक्सप्रेशन ज़्यादा होगा। सो what we can ऑब्जर्व हियर कि जो हमारे पास ट्रीटेड सैंपल्स थे यानी कि जो कैंसरस पेशेंट्स थे उनके अंदर जीन एक्सप्रेशन शो नहीं कर रही जीन्स।
यानी वो पर्टिकुलर जीन्स जो हैं वो फर्दर आगे ट्रांसलेट नहीं होंगी, जबकि जो ट्रीटेड पेशेंट्स थे उनको जो ड्रग्स दी गई, उन ड्रग्स की क्या सिग्निफिकेंट है कि वो उन जीन्स को जो है वो फोर्स्ड एक्सप्रेशन शो करवा रही हैं। सो दिस डेटा वो इस केस में जो है वो सिग्निफिकेंस रखता है कि हम कंपैरिजन करा सकते हैं कि जो हमारा ट्रीटेड और अनट्रीटेड डेटा है उनके अंदर जीन्स जो है वो किस तरह डिफरेंशियल एक्सप्रेशन शो कर रही है। इसी तरह ये सारी लिस्ट ऑफ जीन्स है हमारे पास, हम वन बाय वन इन जीन्स को जो है वो या ग्रुप ऑफ जीन्स को स्टडी कर सकते हैं, फिर फर्दर इनको पाथवे एनालिसिस की तरफ लेके जा सकते हैं कि किस तरह ये ग्रुप ऑफ जीन्स जो है वो एक साथ ग्रुप में इंटरेक्ट करती हैं और एक्सप्रेशन शो करती है। इसके अलावा बायोमार्कर डिस्कवरी की किस तरह डिजीज फॉर्म में और अनडिजीज फॉर्म में हमारे पास जो जीन्स है वो एक्सप्रेशन शो कर रही है। इसके अलावा ड्रग बाइंडिंग और ड्रग डिस्कवरी, और हमारे पास डिफरेंट जो फार्मास्यूटिकल थेराप्यूटिकल या फार्मास्यूटिकल जो एनालिसिस है वो भी हम इन जीन्स या इन जीन जो प्रोफाइल्स हैं इनसे जो है वो फर्दर परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने दो एनालिसिस परफॉर्म की।